Last time we started with income tax and we discussed that the income under the Income Tax Act for any assessee shall be taxable under these five heads: salary, house property, business profession, capital gain, and other sources. ठीक है, we also read about the slab rates. There is old tax regime which has been going on for since long, and there is new tax regime also. They both have different limits and rates. Then deduction under section 80C 80U, as I told you, that any individual or assessee can claim these deductions if they have made such investments or such expenditure. Okay. So we were talking about ATC, that there is maximum limit to 1.5 lakh for ATC plus ATCCC and ATCCD. Okay. Then we also read about some deductions of ATC, like investment in public provident fund, investment in national savings certificate, fixed deposits, premium on life insurance policy, contribution to APF, equity oriented mutual fund, and repayment of housing loan, payment of tuition fees. ठीक है. Then now we move ahead for further deductions. This is deduction under section 80CCC. It is saying deduction in case of contribution to certain pension funds offered by life insurance policy. एक पेंशन के बारे में आप जानते हो, जो आपको नॉर्मली पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट ही रिसीव्स पेंशन टिल द टाइम ऑफ डेथ. बट नाउ क्या होता है, आजकल काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेंशन फंड्स भी ऑफर करती हैं. अगर आप चाहो तो आप उनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो उन पेंशन फंड्स को ध्यान में रखते हुए डिडक्शन दी गई है ये इंडिविजुअल्स को. सेक्शन 80CCC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 offers tax deduction up to rupees 1.5 lakhs per year for contribution made by a person toward certain pension funds offered by a life insurance policy. The 80CCC deduction is within the limit of 80C. जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कंबाइंड लिमिट है 80C प्लस 80CCC एंड CCD की, वो क्या है, 1.5 लाख. इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सी डिडक्शन का फायदा लेके अपना पूरा 1.5 लाख एग्जॉस्ट कर लेते हो. Then there is 80CCD, deduction in case of contribution to pension scheme under the central government. Section 80CCD allows employee to claim deduction for the amount they have paid to for any pension scheme under the central government. Individuals can claim deduction of rupees 10% of their salary or 20% of the gross total income, whichever is lower. यानी उनकी जो सैलरी है उसका 10%, या जो सारे हेड्स की उनकी जो इनकम आ रही है 5 हेड्स की उसको 20%, जो भी उनमें से लोअर होगा उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं. लेकिन हाँ, जो लिमिट है 1.5 लाख की वो तो है ही, उसके ऊपर तो उसके बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं. बेसिकली ये क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये पेंशन स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, तो ये वाला सेक्शन उनके केस में एप्लीकेबल हो जाता है. समझ आ रहा है ईशान? ईशान, हेलो. हेलो. Yes, audible, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. ईशान, आर यू देयर? Hello. यस यस, मैं ईशान से एक बार व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहा हूँ सो दैट ही कैन ज्वाइन. ही इज फेसिंग सम इश्यूज. ईशान, आर यू देयर?
ईशान, आर यू देयर? Hello, हेलो, sir, am I audible? Yes. आप Yes, मुझे yes. ऑडिबल हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो ये 80 ट्रिपल सी एंड 80 सीसी डी आपने सुना है? ईशान? नहीं सर। Okay, I'm just repeating. ETC, we already discussed in the last class. As I told you, ETC plus 80 triple C and 80 CCD, इनकी combined limit भी 1.5 lakh है. तो 80 ट्रिपल सी क्या है? डिडक्शन इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपको पता है, नॉर्मली तो पेंशन जब भी आपके माइंड में आता है तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन मिलती है. ईशान, जब आप अगर आपको सुनता रहे तो एक बार प्लीज बीच में एम्पैथी देते रहना, सो ओके दैट आई सर। कैन नो यू आर लिसनिंग. ओके. ओके सर। एंड तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं, बेसिकली क्या होता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑब्टेन करते हो तो वो कुछ आपको पेंशन फंड्स भी ऑफर करते हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट पोस्ट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको यहाँ से पेंशन आएगी. अगर आप उन स्कीम्स में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, प्रीमियम देते हो, तो वो भी आपको 80 ट्रिपल सी में डिडक्शन मिल जाएगी. बट टू कीप इन माइंड कि 80 सी, 80 ट्रिपल सी एंड 80 सी डी की जो कंबाइंड लिमिट है वो 1.5 लाख ही रहेगी. यू कैन नॉट बियॉन्ड गो बियॉन्ड दैट. देन है हमारा नेक्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल सी डी. इट इज इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. उनको ये पेंशन स्कीम्स अवेलेबल होती है, तो वो उनकी जो सैलरी है उसका 10% या ग्रॉस टोटल इनकम का 20% उतना वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, विच एवर इज लोअर. अब बट अप टू अ लिमिट ऑफ 1.5 lakh, which is a comprehensive limit for three section. I am repeating again, 80C, 80 triple C and 80 CCD. इन तीनों सेक्शन की कंबाइंड लिमिट 1.5 लाख है. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. ईशान, ऑडिबल? सर यस सर। Yes. ठीक है. देन हमारा है 80 TTA TTB. ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया था शायद लास्ट क्लास में. जो आपको Interest. सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है, वो पहले तो आप अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड करोगे, बट 80 TTA में आपको एस डिडक्शन वो लेस हो जाएगा. बट मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 10,000 है. अगर आपको 12,000 का फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आ रहा होगा सेविंग बैंक के ऊपर, तो 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, बाकी 2,000 आपका टैक्सेबल रहेगा. ठीक है, यानी कि ऊपर हम 12,000 ऐड करेंगे इनकम में और नीचे डिडक्शन में 10,000 लेस हो जाएगा. तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा कि आपको 10,000 की डिडक्शन मिल गई. एटीटीटीए हम सबके लिए है, और टीटीबी जो है वो है सीनियर सिटीजन के लिए, हु इज अबव एज एट द एज ऑफ 60 years एंड अबव. ओके. दे कैन क्लेम अ स्पेसिफाइड अमाउंट एज डिडक्शन, ठीक है, फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम. बट इनकी जो लिमिट है वो 50,000 है. ठीक है. दे आर सीइंग अ डिडक्शन ऑफ 50,000 और द इनकम अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट होगा. अगर फॉर एग्जांपल वो 45 है तो 45 का ही मिलेगा ना. बट मैक्सिमम लिमिट इनकी कितनी है? 50,000. ठीक है, विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. ये बात समझ आ रही है आपको? कोई डाउट? नो सर। ईशान? नो सर। ठीक है. देन ये आ रहा है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. प्रीमियम प्रीमियम ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. assessee यानी कि इंडिविजुअल या एचयूएफ shall be allowed a deduction for any amount spent towards a premium of health insurance policy. This is simply an insurance policy taken for health. जितने भी आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ये उनको कवर करता है. दिस इंक्लूड्स पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ स्पाउस, यानी कि हस्बैंड है तो उनके लिए वाइफ, वाइफ है तो उनके लिए हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सेल्फ, टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ प्लान. यानी कि अगर देखो आपने कोई नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है वो तो है, साथ ही साथ अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ प्लान ऑप्ट कर रखा है, उसके लिए आपका प्रीमियम जा रहा है, तो उसको भी ये कवर करेगा. डिडक्शन ऑफ ₹25,000 कैन बी क्लेम्ड फॉर इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. तो इसके अंदर जो लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी है? 25,000 की. अगर आपका प्रीमियम जा रहा है फॉर एग्जांपल 20,000 का, तो ऑब्वियसली 20 का मिलेगा. मैक्सिमम लिमिट इसमें कितनी है? 25 की. उसके बाद ये कहते हैं एन एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल अप टू 25,000 इफ पेरेंट्स आर लेस देन 60 years ऑफ एज. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है वो कितनी है? 25,000. ठीक है. और पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी, यानी कि टोटल कितना हो गया? 50,000 हो गया. 25 तो अपने लिए, यस सर। स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए. और अगर पेरेंट्स की एज 60 से बिलो है तो 25,000 की डिडक्शन उनके लिए भी मिलेगी. हाँ,
एडिशनली अगर पेरेंट्स की एज 60 से अबव है तो फिर पेरेंट्स के लिए आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी 50,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी 75,000। 75। बट अगर आपकी एज भी 60 से अबव है, पेरेंट्स की एज भी 60 से अबव है, तो दोनों की ही 50-50 की लिमिट हो जाएगी, तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा 1 लाख। सिंपल है समझने का तरीका। 25,000 आपके आपके बच्चों के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स की एज 60 अब हो गई तो 25 का डबल हो जाएगा, आपकी एज भी 60 अब हो है तो आपका भी 25 से डबल हो जाएगा, टोटल इट विल गो टू 1 लाख। तो काफी Okay. बेनिफिशियल डिडक्शन है ये मेडिकल इंश्योरेंस के केस में। Okay, sir. देन 80DD, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अब ये उनके लिए कि आपकी रिलेशन में कोई डिपेंडेंट है और आप उसकी केयर कर रहे हो, एंड वो जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल है, ठीक है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी। ये दोनों को अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी अवेलेबल है और एचयूएफ को भी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। अब यहाँ पे इन्होंने डिसेबिलिटी को स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर देखो इसके बेसिकली सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, कहने से नहीं होता। तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा 40% से लेकर 79% को ये नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिस केस में आपको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। एंड सीवियर डिसेबिलिटी कब है 80% और मोर, उस केस में आपको 1,25,000 की ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी। नीचे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो कवर्स पेमेंट और डिपॉजिट टू स्पेसिफाइड स्कीम फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफाइड स्कीम्स चल रही हैं ऐसे हैंडीकैप डिपेंडेंट की मेंटेनेंस के लिए, वहां पे आपको डिपॉजिट या पेमेंट दे रहे हो तो उसको भी कवर कर जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टू क्लेम दिस डिडक्शन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा, आपको अपने आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी से, जो ये सर्टिफाई कर रही होगी कि ये पर्सन डिसेबल है, और ये भी सर्टिफाई कर रही होगी कि ये जो डिसेबिलिटी है ये नॉर्मल है, ये सीवियर है। अकॉर्डिंगली आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दिस कवर अंडर सेक्शन 80DD। एनी डाउट? No, sir. बोर हो रहे हो? नहीं सर। हम्म नहीं। इट इज 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इज अवेलेबल फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल। पिछली वाली और इसमें फर्क क्या है, वहां पे आपका कोई डिपेंडेंट है जिसके ऊपर आप वो एक्सपेंसेस कर रहे हो, यहाँ पे आपके लिए खुद के लिए एसएससी के लिए कि जो एसएससी है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है वो खुद डिसेबल्ड है, ठीक है, ये उसके लिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इज अवेलेबल टू disabled individual. Amount of deduction shall be 75,000 if individual suffers from a physical disability including blindness or mental retardation. In case of severe disability, one can claim a deduction of 1,25,000. सेम क्राइटेरिया है पिछले वाला। अगर आप देखो 80DD का क्राइटेरिया और यू का क्राइटेरिया सेम है। नॉर्मल डिसेबिलिटी 40 to 79%, उस केस में 75,000 की डिडक्शन अवेलेबल है। सेवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर, 1,25,000 की डिडक्शन अवेलेबल है। Again, to claim this deduction, a certificate of disability is required from a prescribed medical authority. Clear? क्या Yes, नोट sir. डाउन कर रहे हो राहुल? This one is ये तो रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी आपको। अब आ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन काम आएगा आपके, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी कि एक पर्सन जो इनकम अर्न करता है, अच्छा खासा पैकेज है, अगर वो आपको कह देता है कि रिटर्न फाइल कर दो, तो यू विल नो कि किस तरह की चीजें हैं। अगर उसने उस पर्सन ने वो एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो इसकी इनकम कितनी कम डाउन आ जाएगी, अकॉर्डिंगली टैक्स सेव हो जाएगा। 80DD, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज। अब ये कुछ स्पेसिफाइड डिजीज होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा, आप इसको 80DDB को गूगल भी करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। answer. कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। मेंटल जो इश्यूज होते हैं उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आती हैं। कुछ कैंसर से रिलेटेड डिजीज हैं वो कवर होती हैं। स्पेसिफाइड डिजीज मतलब आप ये समझ लो कि काफी डेंजरस और खतरनाक डिजीज होती हैं, ठीक है। तो ऐसी इंडिविजुअल और एचओ शेल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड डिजीज। डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर Yes, sir. पर्सन की एज जिसके लिए डिडक्शन, अब ये यहाँ पे जिस भी पर्सन के लिए ये डिडक्शन क्लेम की जा रही है उसकी एज 60 ईयर्स ऑफ एज है या उससे लेस देन है, सॉरी लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, तो 40,000 ये एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लेस, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंस 40,000 से अबव जाता है तो 40,000 मिलेगा। अगर एक्चुअल एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 35,000 है तो 35, तो विच एवर इज लेस वो आपको मिलेगा। 60 ईयर्स या उससे ऊपर की एज है तो 1 लाख है। टू क्लेम दिस डिडक्शन, a certificate from a specialist of such specified disease
is required in Form 10I. फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आपको जो सर्टिफिकेट बना के देगा वो कौन देगा? न्यूरोलॉजिस्ट ही देगा उस पर्टिकुलर डोमेन का, और फॉर्म उसका क्या रहेगा? 10I। तभी जाके वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो बेस्ड ऑन एज क्राइटेरिया। दिस इज 80TD-B। देन 80G, दिस इज क्वाइट फेमस। बेसिकली क्या होता है, ये तो मोस्टली लोग क्लेम करते हैं, डोनेशंस। ठीक है, आपने कहीं भी कुछ डोनेशंस दे रखे हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ स्पेसिफाइड है, कुछ अनस्पेसिफाइड है। Section 80G of the Income Tax Act 1961 allowed taxpayers to save tax by donating money to eligible charitable donation. By donating to eligible institutions and organizations, taxpayers are claim deduction ranging from 50% to 100% of the amount donated. However, there are certain limits and conditions that need to be fulfilled to avail these deductions. Let us examine in detail how Section 80G can help in tax savings and various nuisances. अब ये क्या होता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आप एडीजी को गूगल करोगे तो वहां पे 30 to 35 फंड्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि किस केस में तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, किस केस में आपको 50% डिडक्शन मिलेगी। 100% का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1 लाख डोनेट किया तो पूरा 1 लाख का आपको डिडक्शन मिल गया, 50% एज यू नो 50% हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये किस तरह के फंड्स होते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, सूखा पड़ जाए, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, इंदिरा गांधी फंड है, नवल बेनेवलेंट फंड है जो आर्मी के लोगों के लिए कुछ फंड्स होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है। तो इस तरह के काफी सारे फंड्स हैं और साथ में उनकी परसेंटेज भी स्पेसिफाई है कि किस केस में 100% है और किस केस में 50% है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया जो स्पेसिफाई कर रखे हैं अलोंग विथ परसेंटेज, ये तो ऊपर की 2 कैटेगरी में आ जाएंगे। परसेंटेज वहां लिखी हुई है कि आपको 100% किस केस में मिलेगा, 50% किस केस में मिलेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऊपर की कैटेगरी में आ जाएंगे विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट का मतलब आप इसको लिटरली मत लेना, इसका मतलब है कि सीधा फ्लैट। अगर 100% मेंशन है तो और आपने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आपको 1 लाख की डिडक्शन, 50% है तो 1 लाख का 50% 50,000। ठीक है, लेकिन जो नीचे के दो हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, ये कौन से हैं कि जो ऊपर के जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं उसमें नहीं आते, कुछ हटके आते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि नॉर्मली कितनी सारी गौशालाएं खुली होती हैं, ठीक है, और इतने सारे एनजीओज हैं, तो उन्होंने भी एटीजी के सर्टिफिकेट ले रखे होते हैं कि उनको भी अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आप डिडक्शंस ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ये चीज रहती है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से कुछ कैपिटल गेन्स लेस कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो इनकम आती है उसका 10% कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये डिसाइड किया जाता है कि आपका किस अमाउंट के ऊपर 100% या 50% कैलकुलेट होगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही समझा पाऊंगा, जब प्रैक्टिकल केस स्टडी दूंगा यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट तो आप समझ गए हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट क्या होता है यू विल नो लेटर। ठीक है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC सिंपल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन देते हो तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ भी डोनेट करते हो, बट कोई भी कैश डोनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। जो भी डोनेशन होगा वो या चेक होगा या अकाउंट ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो ट्रांसफर होगा उसी के बेसिस पे आप डिडक्शन ले सकते हो, नो कैश अलाउड। देन ईईबी है, डिडक्शन इन केस ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आपको पता है इतने टाइम से इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ गई हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए एक तरह की सब्सिडी भी देती है और डिडक्शन भी अलाउड है। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लिया है, उस लोन में ईएमआई जाएगी मंथली, उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो ईयरली कैलकुलेट कर लोगे, उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है कितना है 1.5। देन डिडक्शन 80E, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, आपने पढ़ने लिखने के लिए कोई लोन ले रखा है उसके लिए है, जल्दी से रीडिंग ले लेते हैं। डिडक्शन 80G एजुकेशन लोन डिडक्शन इज अ टैक्स इंसेंटिव गिवन टू पीपल हु अवेल एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडी। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट पेड ऑन द लोन एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है भैया, इंटरेस्ट जो पोर्शन जा रहा है लोन का उसकी डिडक्शन मिलेगी। लोन डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उसके बाद का अलाउड नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच इंटरेस्ट रिपेमेंट बिगिंस। ठीक है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन क्लेम दिस डिडक्शन और द इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, इट इज नॉट अवेलेबल टू एचयूएफ और एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर। सिर्फ इंडिविजुअल को ये अलाउड है। द लोन शुड बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और फॉर अ स्टूडेंट फ्रॉम होम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन। यानी कि अपने नहीं एजुकेशन लोन लिया हो तो भी मिल जाएगी, वाइफ या हस्बैंड के लिए लिया उसके लिए भी पॉसिबल है, चिल्ड्रन के लिए भी पॉसिबल है, या आप किसी के लीगल गार्डियन बने हुए हो,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो तो आप उसके लीगल गार्डियन हो गए, उस केस में भी उस वो बच्चा अगर एजुकेशन लोन ले रहा है तो उस केस में भी आपको डिडक्शन अलाउड है। पेरेंट्स कैन इजीली क्लेम दिस डिडक्शन फॉर अ लोन टेकन फॉर द हायर स्टडीज ऑफ दियर चिल्ड्रन। देयर इज नो लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, Maximum. यानी कि जितना इंटरेस्ट जा रहा है उतना आपको डिडक्शन मिलेगी, कोई मैक्सिमम कैपिंग नहीं है। Right. दिस इज 80E। याद रखने के लिए ई फॉर एजुकेशन। नाउ 80EE, डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। सिमिलर टू एजुकेशन लोन है, हाउस लोन आपने ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। एनुअली जितनी भी ईएमआई जा रही है उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो एज डिडक्शन आप लेस कर दोगे। हाँ, इसकी पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है मैक्सिमम 50,000 का इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा, उससे ऊपर का अलाउड नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन कंटिन्यू टू क्लेम दिस डिडक्शन अंटिल यू हैव फुली रीपेड द लोन। आपका लोन चाहे 25 साल का हो 30 साल का हो, जब तक आपका लोन जो है वो फुली रीपेड नहीं हो जाता आप इंटरेस्ट कंपोनेंट की डिडक्शन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये क्या कह रहा है, अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, यानी कि एचएफ हो गया या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कंपनी हो गया या और कोई टैक्स पेयर है, उनको ये अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल को ही गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देना चाहती है कि अगर आप कोई अपने लिए घर लेते हो तो आपको ये डिडक्शन मिल सकती है। टू क्लेम दिस डिडक्शन यू शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये डिडक्शन उन्हीं को अलाउड है जिनके पास पहले से कोई घर नहीं है। अगर पहले से कोई घर है तो दूसरा घर लेने के लिए आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी के पास एक घर तो हो। Oh. अब लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जब आपकी सबसे पहले आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से डिडक्शन लेस करके नेट इनकम कैलकुलेट कर दोगे, नेट इनकम के बाद फिर स्लैब रेट का यूज करके आप टैक्स कैलकुलेट कर दोगे, फिर आखिरी में आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी टैक्स के अंदर चार्ज करना पड़ेगा, तब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेवाइड एट द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज किसी किसी केस में एप्लीकेबल होगा, आई विल टेल यू लेटर ऑन। अगर जो टोटल इनकम होती है वो एक बहुत ज्यादा हाई लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो 4% का जो सेस है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये लगना ही लगना है, ठीक है। यहां से जो गवर्नमेंट पैसा कैलकुलेट करती है वो कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, ये रिजर्व्ड पैसा होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम टू इंप्रूव द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन द डिप्राइव्ड एरियाज ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। जो भारत के दूर दराज के गांव है और सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस Yeah. पैसे को खर्च किया जाता है, ठीक है। Okay. आपने स्लैब रेट्स पढ़ लिए, ठीक है, जो हमने बता रखे हैं। And अब कुछ ऐसी इनकम्स है जिनके पर्टिकुलर स्पेशल रेट्स हैं, जिसमें आपका कैपिटल गेन भी आ जाता है, ठीक है। कैपिटल गेन आगे फर्दर क्लासिफाइड होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब आपका कैपिटल गेन को पढ़ते हैं। बेसिकली कैपिटल गेन क्या होता है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल का एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, yes. प्रीशियस मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ठीक है, कार हो गई, या और जितनी भी मूवेबल आइटम्स होती हैं, डायमंड्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीज, गोल्ड यूटेंसिल्स हो गए, सिल्वर यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, जितनी भी प्रीशियस चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म में, सॉरी क्या कहते हैं, मूवेबल में। एंड उसके अलावा आपके पास कोई शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट्स परचेज कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो वो सारी चीजें मूवेबल में आ जाती है। इमूवेबल में आपको पता है आपकी लैंड एंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। तो जो कैपिटल गेन है, जब भी इस तरह की प्रॉपर्टीज को सेल किया जाता है, अगर आपको सेल करने पे कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। बट ये जो कैपिटल गेन है इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द टर्म कैपिटल गेन कैन बी डिफाइंड एज प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसको कहते हैं, जो हमारी मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स होती हैं। सच गेन्स कैन बी अक्रूड आइदर थ्रू द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। या तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या कोई आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वही लैंड बिल्डिंग होगी। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कैपिटल गेन कैन बी आइदर बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सिंस प्रॉफिट्स आर कैटेगराइज्ड एज एन इनकम दे आर लायबल फॉर टैक्सेशन विच इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। तो जो भी आपका प्रॉफिट होएगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। जो हमने फर्स्ट हेड पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर पीछे जाऊं मैं, Income from other source. फोर्थ नंबर पे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में ये फॉल करेगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? एनी एसेट दैट इज हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म। यानी कि आपने कोई एसेट को खरीदा और 36 महीने पूरे होने से पहले पहले उसको बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज द ड्यूरेशन इज 24। यानी कि आप शेयर्स बेच रहे हो, शेयर्स खरीदने के बाद बेच रहे हो, गोल्ड खरीदने के बाद बेच रहे हो, यानी जितने भी मूवेबल आइटम है उनके लिए जो पीरियड है शॉर्ट टर्म कैटेगराइज करने के लिए वो 36 मंथ्स का है। लेकिन इमूवेबल के लिए जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए 24 मंथ्स का है। यानी कि अगर मैं मूवेबल की बात कर रहा हूं, उनको अगर मैं 36 मंथ्स के विद इन में बेच देता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद बेचता हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। विद इन 24 मंथ्स ऑफ परचेज मैंने सेल कर दिया शॉर्ट टर्म, आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Then long term capital gain, again any asset which is held for over 36 months is termed as long term asset. The profit generated through the sale of such asset would be treated as long term capital gain and would attract tax accordingly. Assets like preference shares, equities, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स होती हैं म्यूचुअल फंड की तरह, सिक्योरिटीज, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स इफ आर दे आर हेल्ड फॉर ओवर अ ईयर। ये कुछ पर्टिकुलर असेट्स हैं जिनके लिए 1 ईयर का क्राइटेरिया रखा हुआ है। यूनिट्स हो गई, सिक्योरिटीज हो गई, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? जीरो कूपन इसलिए बोला जाता है कि इनके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दिस इज समथिंग लाइक आपने डिस्काउंट पे परचेज किया एंड पार पे खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का ये बॉन्ड था, आपने 90 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, तो वो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम हो गई। जरूरी नहीं है 100 रुपए में बिके, 110 रुपए में भी बिक सकता है, 120 में भी बिक सकता है। यू परचेज एट डिस्काउंट एंड सेल एट सम प्रॉफिट, तो वो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, यानी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, सीधा कैपिटल गेन होता है खरीदने और बेचने का। ठीक है। अब इन्होंने टैक्स रेट बता रखे हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म के केस में अगर इक्विटी शेयर्स है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो आपका 10% टैक्स लगेगा ओवर एंड अबव 1 लाख। यानी 1 लाख तक का गेन है तो कोई टैक्स है ही नहीं। जैसे 1 लाख से ऊपर आपकी जो इनकम है, प्रॉफिट है, बेचने पे गया, तो आपको 10% टैक्स देना है। समझ आता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी शेयर्स को या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल किया, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपके ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1,10,000 का है तो पूरे के ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है। तो सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में 10%, अदर्स के केस में, अब अदर्स के केस में यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म के केस में 20% का टैक्स है। मूवेबल तो ऊपर कवर कर लिया, ठीक है। इमूवेबल नीचे आ गया, और नीचे वो वाला मूवेबल भी आ गया जो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अलावा वाला है, जैसे कि भाई गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है ना, तो वो भी नीचे वाले में आ गया। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, जो स्लैब रेट्स आपने पढ़े हुए हैं। अगर एसटीटी एप्लीकेबल है तो 15% का रेट है। ये एसटीटी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रांजेक्शन्स, जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है ना, तो जब भी ट्रेड होता है तो एसटीटी लगता है, यानी वो ट्रांजेक्शन करने का एक टैक्स लग जाता है। तो अगर वो टैक्स वहां पे लगा हुआ है जब आपने ट्रेड किया था, उस केस में जो कैपिटल गेन होगा वो नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, जो स्टार्टिंग में सेकंड स्लाइड में आपने देखे थे। लेकिन अगर एसटीटी एप्लीकेबल है तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंसेशन दे रखा है, 15% का फ्लैट रेट रखा हुआ है। ये बातें सारी आपको समझ में आ रही हैं? 50% भी समझ में आ रही है, मोर देन इनफ है। जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. एक होती है कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम के लिए भी अलग टैक्स रेट है, इसके लिए सीधा फ्लैट 30% का रेट होता है। कैजुअल इनकम है, नाम से ही पता लगता है कैजुअली कमा लिया, यानी ना तो ये आपकी जॉब से आ रही है, ना ये आपके बिजनेस से आ रही है, ना ये आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, ना ये कैपिटल गेन है, और ना ये अदर रिसोर्सेज का नॉर्मल वाला है, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा लिया, इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया। ये स्पेशल इनकम है, कैजुअल इनकम, यानी कुछ ऐसा एक्टिविटी कर ली जो रेगुलर में नहीं रहती, फिर भी आपने कमा ली। जैसे भाई आपने कौन बनेगा करोड़पति पे 1 करोड़ जीत लिया, ये 7 करोड़ जीत लिया, वो कैजुअल इनकम है, वो अपने मेहनत से या स्किल से नहीं कमाई है, वो एक्सेप्शनल गेन है जो हमेशा नहीं होता। ठीक है। आपने कोई लॉटरी विन कर ली, या आपने कोई हॉर्स रेसेस में गैम्बलिंग करी थी, उसमें आपने कमा लिया, तो उस तरह की इनकम पे गवर्नमेंट सीधा फ्लैट 30% देती है, कि इसमें कोई मेहनत तो होती नहीं है। आपको एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह जैकपॉट लग जाता है उस तरह की चीज है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट 30% का टैक्स लेती है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कैजुअल इनकम एज द नेम सजेस्ट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब है ये बार बार नहीं होती, कभी कभी कमा लेता है इंसान। इट्स एन इनकम विच इज अर्न बाय चांस एंड नॉट लाइकली टू ओकर अगेन इन अ ईयर।
दिस अर्निंग इज नाइदर एंटिसिपेटेड नॉर प्रोवाइडेड फॉर एनी अग्रीमेंट। ये आपको कोई अग्रीमेंट करके आप, फॉर एग्जाम्पल कौन बनेगा करोड़पति के शो में पार्टिसिपेट करते हो, तो क्या अमिताभ बच्चन आपको अग्रीमेंट में लिख के देगा आप जीतोगे? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस इज क्वाइट नॉन रिकरिंग इन नेचर, और इसकी कोई लाइकलीहुड नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी। कैजुअल इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको रखा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, लेकिन इसके लिए रेट जो है टैक्स का वो स्पेशल है। इसका जो सेक्शन है इट इज क्वाइट फेमस, 115 बीबी। कैजुअल इनकम का जो सेक्शन है 115 बीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यू हैव टू पे टैक्स ऑन कैजुअल इनकम एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%, और उसके बाद 4% का एजुकेशन सेस भी लगेगा जो पीछे डिस्कस किया। तो जो इफेक्टिव रेट बनता है वो 31.2% का बनता है। एग्जाम्पल कोट कर रखा है, विनिंग लॉटरीज हो गई, कार्ड गेम्स हो गए, कोई गेम शोज हो गए, जिस तरह टीवी पे रियलिटी शोज आते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, उस या कोई डांस शोज हो गया जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आपको कोई इनकम मिलती है। हॉर्स रेसेस में आपने पार्टिसिपेट किया, या क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए, या और किसी तरह का गेम हो गया। ठीक है। लॉटरीज इंक्लूड विनिंग फ्रॉम मनी थ्रू प्राइजेस बाय ड्रॉइंग दी लॉट और बाय चांस। जिस तरह कभी कभी लकीज ड्रॉ निकाले जाते हैं ना, और लकी ड्रॉ में आपको कोई इनकम हो गई, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है। सो दिस इज कैजुअल इनकम विच इज चार्जेबल एट द टैक्स रेट ऑफ 30%। छोटा सा ये असाइनमेंट है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास से जो हमने असाइनमेंट्स करने हैं वो काफी लॉन्ग होंगे और काफी चीजें उसमें कवर होंगी। जस्ट फॉर अ स्टार्ट, ये छोटा सा केस स्टडी है, इसको आप कंप्लीट कर लो। इसको आपने एक्सेल पे करना है। आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। एक्सेल ओपन करो, कैलकुलेशंस करके इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे दो। जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। Use that. सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा क्या। सिंपल है, मिस्टर राकेश इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। He has यस। earned following incomes during the previous year 20 to 23. As I told you कि इनकम टैक्स की लैंग्वेज में
जो एक फाइनेंशियल ईयर Yes. होता है उसको पीवाई बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 22-23, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से लेके मार्च तक ईयर चलता है, और मार्च के बाद फिर रिटर्न फाइलिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और Yes. इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है। यानी कि साल खत्म होने के बाद आपको कितने महीने मिलते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। ठीक है, तो यस प्रीवियस सर। ईयर यानी 22-23, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक चला होगा। इस साल में जो आपने कमाया उसकी रिटर्न जाएगी 31 मार्च 23 के बाद। और कब तक फाइल करनी है? 31 जुलाई 2023 तक। ये पीरियड यस वैसे आ सर। चुका है। ठीक है, और जिस साल में यस। रिटर्न जाती है, यानी कि 22-23 की रिटर्न कब जाएगी? 23-24 में, तो उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर, क्योंकि उस साल में आपकी क्या हो रही है? इनकम की असेसमेंट हो रही है। इतनी बात समझ में आती है ईशान? यस सर। और उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या बोली है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब टोटल इनकम क्या है इनकी? सैलरी होगी 8,40,000 की, हाउस 7,90,000. प्रॉपर्टी 240 की, बिजनेस प्रोफेशन 50,000 का, कैपिटल गेन 20,000 का। कैपिटल गेन के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया तो आप सीधा एज्यूम करोगे कि नॉर्मल टैक्स रेट पे एप्लीकेबल है इसके ऊपर, यानी कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है वही है। अब टोटल इनकम क्या हो गई? सारी इनकम को टोटल कर दोगे, वो टोटल हो गई। उसके बाद डिडक्शन लेस होती है। डिडक्शन, अब इसने क्या क्या कर रखा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है 1,20,000 का, और पीपीएफ में 45,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये सारे के सारे हमारे एटीसी में कवर हो जाते हैं। एटीसी की कितनी लिमिट है? मैक्सिमम 1.5 लाख। इसने 1.5 कितना lakhs. करा हुआ? 165। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? पूरा 1.5 लाख। टोटल इनकम में से 1.5 लाख लेस कर दोगे, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर दो, सिंपल। 4% का एजुकेशन सेस लगा देना। क्लियर? ओके। यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको That's, फॉर्मेट भी सेंड किया था। uh, यस सर। ये तो आप वैसे भी कर लोगे विदाउट एनी फॉर्मेट, लेकिन uh, आगे के क्वेश्चंस के लिए वो फॉर्मेट काम आएगा। 10% rate of interest means tax. सॉरी, Rate of tax in new regime is 10%. नॉर्मल स्लैब रेट ना, 10% क्यों? स्लैब रेट यार, राहुल फर्स्ट स्लाइड में बता दो रखे हैं आपको स्लैब रेट्स। ये 15% लगेगा। निकालो आप And, देखो। uh, ऐसे नहीं होता ईशान, 15% लगेगा। उसकी जितनी nine, भी इनकम है शुरुआत के, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू स्लैब रेट बोला हुआ है ना इसमें, yes, new हम्म। time, new slab हाँ, तो rate. शुरुआत के जो स्टार्टिंग के 3 lakhs हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद 3 से 6 के बीच में 5% लगेगा, 6 से 9 के बीच में 10% Uh, लगेगा, 9 से 12 के बीच में 15, ऐसे मूव करते हैं स्लैब बाय स्लैब। ये ओके नहीं 7 सर। कि lakhs भैया उसकी means इनकम अगर, 10%. ऐसे नहीं चलते कि उसकी इनकम अगर 12 लाख है तो सीधा फ्लैट 15% लगा दोगे। स्टेज वाइज चलता है। ओके 7 सर। lakhs, 7 lakhs 40,000. हम्म। 7 lakhs 40,000 is the after इनकम tax. Uh, कर लो पूरा, ईशान आप भी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। एक बार इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आई नीड टू स्टॉप माई स्क्रीन शेयरिंग। ओके सर। सॉरी। हम्म। 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। आप
सर एक बार उस टैग ओल्ड और न्यू टैक्स का वो दिखा देना सर, मैं एक बार उसकी फोटो खींच लूंगा। सर हाउस हेड प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगता है? इसकी हाउस हेड प्रॉपर्टी नहीं समझा मैं। उसका। हाउस प्रॉपर्टी सर हाँ, ये ना इनकम अंडर द हाउस हेड प्रॉपर्टी। सबके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट है। सर कैपिटल मेरे गेन को के अलग कैपिटल गेन के अलग रेट्स हैं, लेकिन अभी इसमें नॉर्मल जो मैंने आपको कैपिटल गेन दे रखा है उसको नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल करना है। ये जो गिवन है आपके सामने स्क्रीन पे, यानी कि मतलब सिर्फ इतना है कि सारे इनकम को टोटल कर लो, उसमें से ओके मैक्सिमम सर। डिडक्शन अवेलेबल है उसको लेस कर दो। वो आ जाएगी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम को इस रेट से टैक्स कर दो, और जब टैक्स कैलकुलेट ओके हो जाएगा उसके ऊपर 4% सेस लगा दें। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं करके दूं? सर आप एक बार करके दिखा दो, मैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। One second. आप मुझे बताते रहो सैलरी में कितनी इनकम है। 8,40,000। हाउस हाउस प्रॉपर्टी। 2,40,000। नेक्स्ट बिजनेस प्रोफेशन। 50,000। कैपिटल गेन। 20,000। अदर सोर्सेस। 40,000। -4. Before 184.
50, डिडक्शंस कितनी है इनकी? 20%. 1,20,000 लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 1 लाख। 20,000, ठीक है, ये भी हमारी एटीसी में आ गई, ये हमारी एटीसी में आ गई। नेक्स्ट 45,000 पीपीएफ, पीपीएफ, ये भी हमारी एटीसी में आ गई। कितना? 55. 45,000। ठीक है, इसका अगर सम अप कर ले, ठीक है, बट मैक्सिमम जो हमें अलाउड है वो कितनी है? 150. मैक्सिमम जो अलाउड है वो 1,50,000 है एटीसी के अंदर, एज यू नो। तो हम कितना लेस करेंगे? 1 lakh. 1,50,000। 50,000। ठीक है, ओके। That life insurance full entire amount is taken, sir. सॉरी, Life insurance premium. नहीं, eh, टोटल इनकी जो डिडक्शन है वो 165 की है, और मेरी जो एटीसी की लिमिट है वो 150 है। सिंपल, बात खत्म। That life insurance 20% you said that earlier, sir. नहीं समझा मैं आपकी बात। 20% premium, LIC premium 20% only is taken here in previous slide. यस, विच वन? Previous. डिडक्शंस में कह रहे हो आप? Yes, sir. सर वो कह रहे हैं कि 20% लगता है 20% लाइफ is also. इंश्योरेंस का। बताओ वो कहाँ ये पे? कहना चाहिए, प्रीमियम वाले लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं उसमें ट्वेंटी हाँ, परसेंट डिडक्शन माइनस होगा। 1,20,000 में से 20 कितना, 20%. हाँ, 2 लाख, दो वो 24,000 माइनस हाँ, होगा। हाँ. हु ये कहना सेज? चाह रहे हैं Here सर, in the राहुल कह रहे हैं। कहाँ पे लिखा है? here in that previous some सर slide. वो जो आपने अभी वो दिखाया था ना, अभी जो असाइनमेंट है उससे पहले वाली स्लाइड पे। No, no, after the. असाइनमेंट की अगली स्लाइड ही तो। Yes, health insurance, life insurance here. Here. ये कुछ और है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है राहुल। Okay, sir. ये बता रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली जो कंपनियां है ना, वो एक पेंशन स्कीम भी, पेंशन फंड भी है उनके पास। अगर आप उनके पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो उसके लिए है ये। Okay, sir. हाँ. ठीक है, और नीचे वाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, उस केस में 20% है। बट यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हुई है एटीसी में। ये जो एटीसी है हमारा, एक सेकेंड, एटीसी की शुरुआत यहां से है। ये सारी लिस्टिंग है एटीसी की, इसमें पीपीएफ भी आ जाता है, और प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेकंड नंबर पे। Okay. और एटीसी, ट्रिपल सी, सीसीडी की कंबाइन लिमिट कितनी है? 1,50,000। Good. Yeah. जस्ट अ मोमेंट, चार्जिंग कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें कितना इसमें मिलेगा? 1,50,000। 50. 50,000।
नाउ आई विल कम टू नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम मतलब जिसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं। दिस इज 10,40,000. दिस माइनस दिस 10,40,000 हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी की बात करें, अप टू Relax. 3 लाख हमारा एग्जेम्प्ट है। Hmm. ठीक है, सो हाउ वी विल प्रोसीड। इसमें से 3 लाख1,40,000. कितना परसेंट? 5%. 5%. 5%। नेक्स्ट बताओ। 10%. 6 means ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट 20%. कितना हो गया? ये 12 लाख पे पहुंच गया मैं, मेरे हिसाब से वी आर ओवर। yeah. ठीक है, तो हाँ, इनिशियली 3 लाख एग्जेम्प्ट, देन हाँ. 3 पे 5%, देन 3 पे 9 लाख के बाद क्या लिमिट आ रही है बताओ? 10, 9 लाख के 15%. बाद सॉरी, 15. 15%. 9 लाख से लेके No, कितना, sir. 12 लाख तक ना? तो First हमारा 10 lakh. जो, सॉरी, First 10 lakhs means 3 lakhs minus. First 10 lakh 40,000 means minus 3 lakhs. 10 आपकी lakh बात नहीं 40. समझा मैं। First tax net taxable income is 10 lakh 40,000 10,40,000, ठीक है, तो minus इनिशियली 9 लाख तक हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है। Yes, sir. ठीक है, अब 9 लाख से लेके 12 लाख तक की क्या लिमिट है टैक्स की? 9 लाख से 12 लाख की 15%. 15%। तो अब हमारी तो इसी में, इसी रेंज में हमारी जो इनकम एग्जॉस्ट हो रही है, तो 1040 में से 9 जो लेस करेंगे उसके ऊपर क्या रेट आ जाएगा? 15%. ठीक है ना। Yes, sir. first हाँ जी बोलो। first 10 lakh 40,000 deduct 3 lakhs up 7 lakh 40,000 is हाँ, remaining. Okay. राइट, Uh, 10 में uh, से 3 गए, उसमें से 740 में से 3 7 गए। 7 lakh 40,000 remain. हम्म, 7 then 3 lakhs to बोलो। 1,767. 1040 में से 3 गए, Yes, sir. 740 बच गए। हाँ. Okay. Then 740 में से 3 गए, 440 बच okay. गए। 440 में से 3 गए, तो हमारा ये 140 बच गया, 140. सिंपल। Okay. Fine. दिस इज टैक्स लायबिलिटी। 66,000. Yes, sir. इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। इसी का 4%। ठीक है,
68,640. सिर्फ यही है इसमें। कोई डाउट? No Yeah. sir. ठीक है ना? Yes sir. तो इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू बोथ ऑफ यू कि अभी तक जितनी भी डिडक्शंस पढ़ाई हैं आपको, जितना अभी थियोरेटिकल पोर्शन है, अलोंग विद दिस जो बेसिक केस स्टडी आपने अभी की है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको सिर्फ कोई थ्योरी पोर्शन नहीं होगा, केस स्टडी दूंगा प्रैक्टिकल, वो आपको करनी है। तभी कर पाओगे जब ये सारे प्रोविजंस क्लियर होंगे, अदरवाइज यू विल स्टक। ठीक Okay है? sir. ओके, Yes. गुड नाइट। Good Good night. night sir. Yeah, please share this recording. श्योर श्योर।